hair fall by our very re-owned Dr. Shiv Kumar Mishra. It is a pleasure to introduce you all with the speaker of today's webinar, Dr. Mishra, who is teaching in Nehru Homeopathic Medical College since 2005, joined as a lecturer who is teaching in Nehru as a subject of FMT. Now he is serving there as a professor. He is also a project guide of Lifestyle Disorder Project. He is a re-owned examiner in various universities at national level. He is also member of various committees like HEB, NCH for review of syllabus. He is also a subject expert in various public service commissions, UPSC, UPPSC, OPSC, etc. He has published many articles like Efficacy of Stramonium in Endocrine Disorder, a case report published in Homeopathic Heritage in April 2020 edition. Application of medical ethics by homeo scholars in their practice, published in a peer-reviewed National Journal of Homeopathy in July 2020 edition. Article published in very reputed peer-reviewed magazine of AIIMS Delhi Journal of Forensic Chemistry and Toxicology, Volume 7, Number 2, July-December 2021, page number 61 to 63 on the topic Effectiveness of Dactylography over DNA Fingerprinting in the field of forensic medicine, an overview. In co-authorship with faculty members of the Department of FMT, AIIMS, Delhi. He has delivered many lectures in national and international webinars and seminars. Some of the topics are medico-legal importance of identification of forensic view, knowledge of useful legislation required for homeopathic practitioner, need of the hour, efficacy of homeopathy in the lifestyle disorders. Also, he is honored to be a part of Kent Memorial Lectures organized by SDHA on 20th September 2020 on the topic Medical Negligence, its understanding and applicability. Conferences very unique online virtual continued medical education session on various topics from 10 December 2021 to 12 December 2021. Facilitated by Honorable MLA for the commendable work in Pradhan Mantri Swachhta Kaya Kalp program. Participated in art, video category and won outstanding socio-cultural awards in the category at a very reputed international LHMI Global Colloquium 2021. Facilitated by Homeo Healers for the considerable contribution in the field of homeopathy social service on 12 September 2021. He is also invited as a guest speaker at various news channels and social platforms. Some of them are expert on national broadcasting channel Lok Sabha TV on the COVID discussion many times and on other news channel like Delhi Up to Date. Invited as an expert on national broadcasting channel Sansad TV on the topic eye diseases. He loves to talk and share his view with students, always take initiative to guide them, even from undergraduate to the PhD students. This is all about our speaker, Dr. Shiv Kumar Mishra, and we all are thankful to him for conducting such sessions. Now let us proceed with the session. Over to you, sir. Thank you, Sneha. Thank you very much for your kind words. And now I will request to our participants to please open your camera first. We will discuss with the interactive session with you. So please on your camera also. So we will discuss some parts, then we will start. Because every time we should not use this PowerPoint systems, and we will use PowerPoint, but first of all we have to discuss that what difficulties you are facing in your practice in hair fall problems. So you ask one questions in the Google also, but that is the different thing, and I just want to discuss your problems or your experience also, where you have given medicine and you got result. So what was that approach? Because I also want to learn from you also. So anyone who want to tell something regarding this? Otherwise I have to take the name. So if anyone voluntarily want to say something regarding this, please
Please share your experience regarding this. Any practitioner? I will talk only to the practitioners. Dr. Prachi is there, or Dr. Prachi? Yes, sir, I'm here. Yeah. So she is Dr. Prachi. She passed out from our NHMC, I think 2 years ago. Now she is doing practice also. So I think she is better person to share her views. Please proceed. Great to see you here, sir, and good evening, everybody. I've been practicing in Vasant Vihar, Delhi, and my experience in alopecia cases has been the best when I prescribe a single remedy based on constitutional symptoms, like we've all been learning from sir. And sir, my question would be, what is the scope of homeopathy in receding hairline cases? These are very common these days. I want to know if we can help patients who complain about this, especially males, and even 18, 19-year-old olds come to us these days. So can homeopathy help with that, receding hairline? Yes. I will give you answer of your questions, all questions, because I prepared a slide. So I think I included all those things in that. But it is very good to know that you are prescribing constitutional also and getting results from that. So this is our achievement, that we are prescribing single medicine and getting results in hair fall also. So it's very good. Keep it up. Thank you, sir. And any other practitioner also? Dr. Manmohan or Dr. What can I say? The other doctors practitioners who want to share. Anyone regarding hair fall? Dr. Biswajit, are you hearing me? डॉक्टर जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, सुन पा रहे सर। बताइए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। ये तो हमेशा एक पढ़ने पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना, कि हम मैं पढ़ाते रहूं और सब लोग खाली सुनते रहें। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन। यस सर। आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है हेयर फॉल का आपका? सर मैंने 2-3 केसेस देखे एलोपेशिया एरियाटा का स्पेशली। तो उसमें मैंने जितना भी मेडिसिन मतलब दिया है, तो फर्स्ट टाइम में मतलब थेरापेटिकली दिया था मैं, लेकिन इसमें मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला सर। नहीं मिला? हाँ, तो लेटर आई ट्राइड हेलो सर, कैन यू हियर मी सर? व्हाट यू ट्राइड? हाँ, later I based on symptoms sir, mainly from the main symptom basically based on totality sir. So then I hitting result sir. So are you talking from Assam? Yes sir. Very good. And Dr. Jyoti, Dr. Niharika, what is there anything you want to share? Very good evening, sir. हाँ जी, प्लीज बोलिए। Sir, I just started my practice, तो मैंने अभी इतने सारे केसेस नहीं देखे हैं। अच्छा। But I go with constitutional one. वेरी गुड। मतलब एटलीस्ट इस ग्रुप पे हम सब ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग किसी भी फोरम में जाते हैं, वहाँ पे ऑनेस्टी कम होती है। वेरी गुड। So, Dr. Niharika, do you want to say something? Yes, sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening, please. Yeah. सर रिसेंटली आजकल कोविड के बाद के हेयर फॉल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यूजुअली सारे के सारे यही बोलते हैं कि हमारे हेयर फॉल के लिए कोई मेडिसिन, हेयर फॉल के लिए मेडिसिन, कोई और सिम्टम नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है उनको, हेयर फॉल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैंने क्या कहते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है हेयर फॉल में देखने में रिजल्ट स्पेशली। तो ऐसे कोई रिजल्ट इतनी जल्दी हमें मिला नहीं है।
जी मैंने एक्चुअली खुद पे ही एक एसिड फॉस ट्राई किया था, उसमें आपने जो वो दिया था उससे मेरे को एक्चुअली थोड़ा रिजल्ट मिला था, बट मेरे कई पेशेंट्स में ऐसा देखा नहीं है जिसको मैंने दिया। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी हैं, क्या 50 हैं, 50-60 जितने भी हैं, वो पहले अपने को देख लें, पेशेंट तो बाद में देखेंगे। पहले अपने को देख लें कि उनका खुद का हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आज जो चीज़ें बताई जाएं वो अप्लाई करके देखें, या वो प्रैक्टिकली एक थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि जब डॉक्टर खुद ही बाल डॉक्टर बैठेगा पेशेंट देखने, तो वो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कैसे करेगा? तो थोड़ा सा उसको भी, मतलब पहले अपने को स्वस्थ रखना है ना, तब दूसरों को। तो आई विल गिव सम टिप्स ऑल्सो। देखो ऐसा है कि दिस हेयर फॉल इज अ वेरी डिफिकल्ट डिजीज, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का अमलगमेशन है इसमें, मतलब डाइट भी, एक्सरसाइज भी, तो आपको बहुत सारे पहलू इसमें देखने पड़ेंगे। यू हैव टू लुक द each and every aspect of the life of the patient. Then you have to rule out those areas where there is a problem. So, and sometimes patients are very adamant. What they are doing? They are just saying that हम जी रात को 2 बजे तक जगेंगे, सुबह 8 बजे तक सोएंगे, जंक फूड खाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप दवाई दो जी हेयर फॉल की, हेयर फॉल सही हो जाए। तो दिस इज नॉट द थिंग कि भाई आप सब कुछ खाओगे, सब कुछ करोगे तो फिर अपने मन की करो, भी लगा लो नया नकली बाल, तो वो भी कर लो, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सारी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन पेशेंट आपकी बात उतना नहीं मानता है, और आप जो उसको सजेस्ट करते हो जनरली नहीं मानते हैं, तो रिजल्ट नहीं आता है। तो हम अपने को दोष दे रहे होते हैं कि मेडिसिन फ़ायदा नहीं कर रही है या चीज़ें फ़ायदा नहीं कर रही हैं, बट वो फैक्टर भी आपको थोड़ा एनालाइज करना होगा। जब पेशेंट आपके पास आता है तो जो आपने उसको पथ्य परहेज या चीज़ें बताई हैं, क्या वो फॉलो कर रहा है, वो आप उसको क्रॉस करके पता कर सकते हो। तो इसलिए एक तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो आई थिंक अब कोई क्वेरी, कुछ डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल हैं यहाँ पे? Can you Hello. hear me, Bhagyashree? Hello. Yes, please. Where are you from? I'm from Pune, sir. From where? Pune, Maharashtra. Okay, Maharashtra. So what is your कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए आपको डॉक्टर साहब? Sir, I'm recently pass out, sir. Okay. I've recently completed my internship. अच्छा, ठीक है। But I'm saying query that in one-sided diseases of hair fall, how to treat the cases? सब बताऊंगा, वन साइडेड बताऊंगा, रिसाइडिंग बताऊंगा, सब बताऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फंडामेंटल बेसिक वही है। So let us start. I am going to share slide. Can you see this? Are you able to see this slide? No, sir. No, sir. No. Okay. Let me check it again. Okay. Now? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Okay. So hair fall or hair loss problem is the big challenge for modern medicine practitioners as well as homeopathic physicians. So it's a multifaceted problem which involves many things like stress, diet, exercise, lifestyle, applications. Applications मतलब यहाँ पे different type of hair oils, रीठा, आंवला, फलाना ढिमकाना, वो जितने भी होते हैं, underlying diseases, etc. Sometimes we become helpless to provide the results to the patient, so I made a protocol in my mind and I follow them, which gave me better results than before. So I am not saying that you have to stick with this protocol, but it will help you. आपका अपना methodology है, आपका अपना system है, तो इसमें से कोई भी बात अगर आपकी मदद कर पाए, आपके प्रैक्टिस में एनहांस कर पाए उसको, आपकी नॉलेज को, तो दैट मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ के लिए. So in my OPD I treat my patients suffering from hair fall on the basis of the following criteria. So number 1 is acute hair loss without any reason. Number 2 is acute hair loss with known reason, जहाँ पे रीजन पता है. Now chronic problems of hair loss
Apart from hair loss, I am covering graying of hairs also, some areas of graying of hairs, androgenic alopecia and alopecia areata, and alopecia, majorly all types of alopecia. So not to worry about the type of alopecia. So first, acute hair loss without reason. So these types of patients are very smart. They come in your OPD with all the reports already done. कि डॉक्टर साहब हमने CBC करा लिया, हमने थायराइड प्रोफाइल करा लिया, हमने सब कुछ करा लिया, बट हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमको लग नहीं रहा है कि इसमें ये क्यों हेयर लॉस हो रहा है. इस तरीके से आपके पास ऑलरेडी सब कुछ करा के आते हैं. मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स. सो आई जनरली डिस्कस विद देम देयर रूटीन रिगार्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स, कितने बजे आप सोते हो, कितने बजे उठते हो, पूरा उनका जो डेली रूटीन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें हम ये पाते हैं कि उसमें कई खामियां होती हैं, तो उसको करेक्ट करते हैं. इफ़ आई फाइंड एनी प्रॉब्लम देन आई टेल देम टू करेक्ट इट, है ना. सो आई एग्जामिन देयर हेयर टेक्सचर, थिन है, थिक है, डबल हेडेड है, ड्राइनेस है, डंड्रफ है, क्या चीज़ है, ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ लिविंग इन द AC एनवायरनमेंट. आई ऑल्सो आस्क अबाउट देयर हेयर सप्लीमेंट्स, लाइक शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं, ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, या किस तरीके के डाई यूज़ करते हैं, और क्या आप चेंज कर करके यूज़ करते हो, किस तरीके से उसको आप यूज़ करते हो. आई ऑल्सो फोकस ऑन देयर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपके मदर, फादर, पेरेंट्स, और इन चीज़ों में इन लोगों में किसी को इस तरीके की बाल्डनेस या एलोपेशिया था. So during this conversation, I also keep an eye on their behavior with me to understand them as a person, because in homeopathy we have to prescribe individual medicines also. So कैसा है, कोई बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा है इसको लेके, कोई कैजुअल है, कोई किस तरीके का है. So I also this observe. Now with their consent or permission, I also ask them some personal questions about their sex life or any stress related or not related to that. Because एक मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत काम की है, सेलेनियम. वो अधिकतर जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करते हैं, खास करके लड़के, और सेक्सुअल एक्सेसेस के लिए मानी जाती है मेडिसिन वो, जहाँ पे हेयर फॉल होता है, तो वहाँ पे सेलेनियम बहुत अच्छा, और कैंथरिस भी बहुत अच्छा काम करती है. तो इसीलिए मेरे को ये पूछना पड़ता है कई बार ये पर्सनल क्वेश्चन. आफ्टर गोइंग थ्रू द ऑल प्रोसेस मेनी टाइम्स, I reach at conclusion that with this sort of management or rectification along with our medicine, results start to come from a week to 15 days. किसी ने पूछा था वहाँ पे क्वेश्चनायर में कि सर कितने दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है. तो अगर आपकी एक्यूट प्रॉब्लम है तो ये विद इन ए वीक से 15 डेज है. अगर आपने उसका जड़ पकड़ लिया, अगर आपने प्रॉब्लम पकड़ ली, अगर आपको पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं. इन एक्यूट फेज, इफ इट इज़ नॉट इम्प्रूव्ड आफ्टर 15 days, then I don't rely on the reports, and then I opt second line of treatment which is mentioned further, and I go for the test again कि भाई आप दोबारा कराओ, ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी मेरे को गड़बड़ लग रही है. So this is the management for the acute cases where they are lost without reason, acute hair loss without reason. Now acute hair loss with known reason. So you all may be aware about the causes of hair fall or hair loss or baldness. That is all written in our practice of medicine books. So I will only discuss here the causes which I mostly find in my practice. Sorry. In this scenario, patient himself will tell you that after this acute problem, I feel I lost my hair more. डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया था, मेरे को फीवर हो गया था, मेरे को कोरोना हो गया था, मेरे को अभी ये हो के चुका था, उसके बाद से हेयर फॉल बहुत हो रहा है. तो एक तो ये चीज़ है. बट रिमेंबर दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट हेयर लॉस, बट द कॉज में भी क्रॉनिक डिजीज ऑल्सो, में भी कोई अंडरलाइन कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही हो, और अब उसके स्पीड में बाल झड़ने शुरू हो गए, तो अब वो एक्यूट हेयर लॉस के लिए आया है. बट आपको ये भी रूल आउट करना होगा कि इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज और नॉट. Now there are certain investigation which I recommend to patient to rule out the cause, like CBC लोग करवा लेते हैं एवं ही, और उसको देखते भी नहीं है, उसको गंभीरता से नहीं देखते. कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ना, इसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखना होता है. उसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हैं कि किस तरीके की हैं जो ब्लड सेल्स हैं, उनको आप देखो. इफ एनी इन्फेक्शन और एनी but you can say neutrophil rise or lymphocytosis you will observe. So you can easily guess that the patient is suffering from any acute or chronic disorder, because neutrophils या polymorphonucleosides होती हैं, वो आपकी
70% से ऊपर जब जाती हैं तो आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ये एक क्राइटेरिया होता है। अदरवाइज लिम्फोसाइट्स अगर राइज होती हैं तो आप कोई किसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से सफ़र कर रहे हो, तो आपको ये थोड़ा सा रूल आउट करना पड़ेगा ब्लड पिक्चर को देख के। तो CBC को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, ESR भी देखिए, और साथ में ईओसिनोफिल भी कई बार बड़े होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। कई बार वर्म इन्फेस्टेशन से या किसी एलर्जिक रिएक्शन से भी ईओसिनोफिल बड़े होते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि ब्लड पिक्चर कैसी है, या CBC में क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन कितना आ रहा है, हीमोग्राम कितने में हीमोग्लोबिन कितना आ रहा है, उसमें कमी तो नहीं है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल की, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट्स को है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड विद हेयर फॉल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के पेशेंट्स आते हैं। तो उनके में अगर उनका थायराइड इम्बैलेंस है तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से हेयर फॉल होता है उसमें, तो हमें उसको करेक्ट करना होगा। उसके अलावा आयरन प्रोफाइल की यहाँ तक बात करते हैं तो आयरन के लिए हमें सीरम आयरन, सीरम ट्रांसफेरेटिन और TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसका कारण है कि कई बार जब आपको ये पता लग जाता है कि पेशेंट में 10 या 9 आ रहा है हीमोग्लोबिन, तो क्या रीज़न है, क्या इसको आयरन मिल नहीं रहा है, या आयरन मिल रहा है आयरन कन्वर्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर जिस फॉर्म में ये होता है ब्लड में। तो उसके लिए आपको ये तीनों कराने होते हैं, सीरम आयरन, सीरम ट्रांसफेरेंट, TIBC बड़ा होने का मतलब ये होता है कि भाई इसको जो है आयरन इसका जो है ना प्रॉपर इसको मिल नहीं रहा, आयरन डेफिशिएंसी है। तो आप आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन के कुछ टॉनिक्स या कुछ अपनी ओर से आयरन के जो आयरन कंटेनिंग फूड है उनके लिए आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे DHT का, जिसको आप लोग कहते हो रिसाइडिंग हेयर हो रहा है, या जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस जो बोल रहे हो, ये DHT की वजह से बहुत होता है। सो चेक DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन level in blood or saliva, which is higher in female may cause unwanted hairs, and in male it weakens the follicle and causes baldness due to the androgenic alopecia। तो ये जो है ना DHT, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा जो मेल्स ज़्यादातर जिम वगैरह एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं। आप ये देखोगे ज़्यादातर जिम में जो अच्छी बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, उनके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, या वो हेयर उनका प्रॉपर होता नहीं, वो पूरा मेल बाल्डनेस, मेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ जाता है। क्यों ऐसा होता है कि DHT बढ़ने की वजह से उनके हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, और कई बार वो मसल को बढ़ाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए प्रोटीन्स वगैरह भी लेते हैं, वो भी कई बार नुकसान करता है। तो आप जितना मसल को पे वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको क्या कह सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको आप बढ़ाओगे उतना आपका DHT रिक्वायर होगा, और जहाँ DHT बढ़ेगा वहाँ पे आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप ऐसा नहीं कि जिम नहीं जाइए, जिम जाइए, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं कि आप तुल गए बिल्कुल ही कि भाई इसको मेरे को ये करना है वो करना है। अपने धीमे 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 धीमे, मतलब आपको अपने बालों का भी ध्यान रखना है और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, तो उसको मॉडरेटली करते हुए धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो डॉक्टर प्राची ने भी पूछा, और मेरे हिसाब से हमें ये पेशेंट से ज़रूर पूछना चाहिए कि आप जिम वगैरह जाते हो कि नहीं जाते हो। और आजकल मोस्टली 20-30% जो है ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिम जा रहे होते हैं। डॉक्टर प्राची, एम आई राइट? आर यू देयर? हो सकता है मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं बता पा रहे। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। उसके अलावा ओवरवेट ट्रेनिंग, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ DHT, may cause initiation of the hair loss, so it is advised to do moderate exercise for body shape। मुझे सुन पा रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. So levels of vitamin D and vitamin B12 is also essential to check whether from this deficiency also one can suffer from hair fall। ठीक है ना। आजकल मैं ज़्यादातर अपने OPDs में भी विटामिन D बहुत सारे पेशेंट्स का कराता हूँ, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में, सेडेंटरी हैबिट्स में रह रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे विटामिन D सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो उस वजह से आपको ये सप्लीमेंट देने जरूरी हैं। Despite from all possible blood tests, there may be some other causes also, like mental stress due to environment in office। ऑफिस तो एक एग्जांपल है। फीमेल्स के लिए अपना घर में भी स्ट्रेस होता है,
बहुत सारे इनके मल्टीटास्किंग बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस होता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता घर का, फैमिली का, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और स्ट्रेस जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सब स्ट्रेस फ्री घूम रहे हैं, स्ट्रेस सबको है, बट आपकी बॉडी इम्यूनिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। यानी बॉडी इम्यूनिटी लेवल पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस हावी हो रहा है। तो आपको उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो भी उसकी साइकोलॉजी है या जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी उसके मेंटल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप दोगे तो काफ़ी अच्छा एक्शन होता है। और चेंज ऑफ लोकेशन आफ्टर ट्रांसफ़र, एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, कहीं ऐसा है कि भाई जहाँ का पानी अच्छा नहीं है या जगह खाना पीना अच्छा नहीं है, तो वो भी एक कॉज होता है। कुछ पुराने पेशेंट्स होते हैं जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है, जीआई डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है किसी को, या एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है फूड के, तो भी ये आता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। रिसेंटली टाइफाइड हुआ हो या रिसेंटली वैक्सीनेशन हुआ हो, अभी कोविड के बाद वैक्सीनेशन के भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हेयर फॉल हुआ है वैक्सीनेशन के बाद, तो वो भी एक है, वो भी हम वहाँ भी हमें कवर करना होता है, हमें अपनी मेडिसिन देनी होती है। साथ ही साथ जब आप हेयर एग्जामिन करोगे तो डंडरफ और ड्राइनेस देखोगे ही देखोगे, तो वो हमें उसके हिसाब से भी मेडिकेशन हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। सेक्सुअल एक्सेसेस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये भी एक कॉज होता है ना। साथ ही साथ ईटिंग हैबिट्स, जैसे जंक फूड्स हैं, ठीक है, तो वो अपने हेल्दी फूड्स आप नहीं ले रहे हो, तो वो भी कॉज है। अब आप कहोगे कि सर आप बिल्कुल ही, आप बोलोगे कि एकदम उसमें आदमी चले पथ्य परहेज से और रूटीन से तभी बाल रह पाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की दुर्गति कर रखी है, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, आपने बहुत लंबे समय से अपना आहार विहार विचार सब खराब किया हुआ है, तो इसका जो है इफेक्ट तो आएगा ही, और फिर उसमें रिजल्ट भी थोड़ा लेट आता है। तो इन चीज़ों को आपको करेक्ट करना होगा। बैड अफेक्टेड लाइफ स्टाइल, लेट नाइट वॉच है, ठीक है, आप एग्जाम टाइम में आपकी मजबूरी है, लेकिन अभी क्या होता है कि आपको एक हो जाता है कि आप रात में नींद ही नहीं आ रही है, पर कोशिश करो टाइम से सोने की, टाइम से उठने की। कोई जरूरी नहीं कि रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो, क्योंकि साइकार्डियन साइकिल जो आपकी प्रभावित हो जाती है। आप भोर में उठ जाओ, आपको 2 घंटे जो आप 12 से 2 पढ़ रहे हो, आप 4 बजे उठ के 4 से 6 पढ़ लो, कम से कम आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं पेशेंट नहीं, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसको मेंटेन करना है। So it will, all things will lower the immunity mechanism of the body and will affect the quality as well as quantity of hairs. After finding out the right cause, I try to correct them along with my medication, and more than 50% patients are getting results within 3 weeks of the treatment. So counseling plays an important role in this section, as patient must understand the value of lifestyle as well as healthy foods. आपको बैठ के अच्छे से बात करनी होगी, उसकी पूरी दिनचर्या सुननी होगी, डे टू डे में करता क्या है, फिर उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। आपके पास डाइट चार्ट भी होंगे, आपके पास लाइफस्टाइल संबंधी सारी चीज़ें भी होंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहा है वो भी आप उसको परहेज करवाओ, तो वो सारी चीज़ों को आप लोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसमें। Now come to the chronic problems of hair loss. So sometimes some patients come with problem of hair loss for more than 3 months, and they generally try local applications like amla, rita, shikakai, ये वो, but they didn't take any medicine or they didn't go to for any test. तो वो सारी चीज़ें आपको दोबारा थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आजमा के आए होते हैं, फिर भी वो हेयर लॉस हो रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीठा आंवला शिकाकाई मत लगाओ, मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि आप सब कुछ लगा के देख चुके हो और आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा। Now they may also be suffering from chronic disease like irritable bowel syndrome, long continued thyroid disorders. तो chronic में भी जो chronic disease होती हैं वो भी एक cause हो जाती हैं। So we have to find out the cause as well as we discussed earlier and try to correct them, and we have to take the case in details as we all are aware about in our college training. तो कैसे chronic case लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, हम सारे ट्रेंड हैं। तो chronic cases के लिए आपको chronic की तरह ही उसको देखना होगा, कोई miasmatic hindrance तो नहीं है। Sometimes these cases did not give you results due to the complex disease in patients, और patient has mentality to change doctors frequently. एक डॉक्टर के पास जाएगा, 10 दिन रहेगा, फिर अगले के पास जाएगा, तो उससे भी पेशेंट को लाभ नहीं होता है, कि ये भी फैक्टर होता है। So it is very necessary that you must clear him in first visit in any case that how much time it will take to give results. It will increase the faith on you. Generally 6 months are required for chronic cases. यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे हैं, इसको देख रहे हैं हमारे वेबिनार को, उनसे कि आप पेशेंट को जितनी जल्दी बता दोगे
सीसी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज में कि कितना टाइम लगेगा, उससे पेशेंट को थोड़ा सा एक तसल्ली हो जाती है साइकोलॉजिकली। बाद में भले ही वो आप 3 महीने का 4 महीने कर लो 5 महीने कर लो, उसको आराम मिलने लगता है तो वो, बट कई बार पेशेंट जो है ना, और आप नहीं बताते हो तो वो फिर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ के भाग जाता है। और देखो उसको जाना होगा तो वो वैसे भी चला जाएगा, वो 4 महीने सुन के भी चला जाएगा, और रुकना होगा तो वैसे भी रुकेगा। तो आपको क्लैरिटी रहने से ही रहता है कि पेशेंट का फेथ आपके ऊपर हो जाता है, तो वो एक आप बहुत ज़्यादा जरूरी चीज। फर्दर यू मस्ट रिमेंबर इन माइंड रिगार्डिंग मैनेजमेंट विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो भी हमने मैनेजमेंट बताया किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्रॉनिक में भी आपको सारी जांचें, सारी चीज़ें, विटामिन डी, विटामिन B12, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और करनी है। So graying of hairs, though the topic is more about hair loss or hair fall, but our learned audience also want to know regarding this. As per my experience, there are generally 3 causes, 2 to 3 causes. Like genetic भी होता है, vitamin deficiencies भी हैं, और किसी किसी एरिया में फ्लोरीन कंटेंट ज़्यादा होता है पानी में, तो वहाँ पे हाइपरफ्लोरोसिस होने की वजह से भी ग्रेइंग होती है। So I found it's difficult to treat such cases where mixed miasmatic involvement is there. Mixed miasmatic involvement का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारी डिजीजेज रही हैं या मिक्स मियाज़म रहा है, तो उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए 1 by 1 आपको उसको अप्रोच करना पड़ता है। बट आई ट्रीटेड सम ऑफ द केसेस बाय रिमूविंग द कॉज और बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो इसमें कुछ केसेस सही हुए हैं, मतलब बहुत हम अच्छा नहीं कह सकते कि ग्रेइंग में आपके, फिर वही वाली बात है, मैनेजमेंट भी है, और आप कौन सी डाई का इस्तेमाल करके आए थे, क्या करके आए थे, कहाँ क्या दवाई लेके आए थे, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप चाहोगे कि आप एकदम ग्रेइंग सही कर दो तो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। समटाइम्स चेंज ऑफ यूज ऑफ वाटर इन बेदिंग और ड्रिंकिंग विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर दिस। जहाँ पे मैंने कहा अभी हाइपरफ्लोरोसिस या फ्लोराइड कंटेंट है, आप पेशेंट को बोलो कि भाई एक बार काम कर, बड़ी बिस्लेरी की बोतल ले, तू उससे नहा ले, एक बार उससे थोड़ा सा अपना मंगा के रोज करके देख अगर वो इसको वो कर सकता है मेंटेन। समटाइम्स ओवर यूज ऑफ ड्रग्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सो यू हैव टू नोट डाउन द नेम ऑफ दोज मेडिसिन एंड ट्राई टू स्टॉप अननेसेसरी मेडिकेशंस। ठीक है, कई बार हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाती है कि खाए पड़े हैं, विटामिन की टैबलेट खाए पड़े हैं, 6 महीने 8 महीने तक खा रहे हैं, तो वो भी एक कॉज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्ले वाइटल रोल इन दिस। तो क्रॉनिक केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑब्वियसली रोल प्ले करती हैं। तो जनरली हेयर पासेस थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड शेडिंग, ये हम सब पढ़ चुके हैं। एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, ये 3 फेज के थ्रू हेयर साइकिल होती है, जहाँ पे हेयर ग्रो करता है और बाद में वो हेयर फॉल होता है। तो एलोपेशिया बेसिकली मीन्स है लॉस ऑफ हेयर, जनरली डेली लॉस ऑफ हेयर 50 to 100 हेयर्स का हम जनरली सबके साथ होता है, बट जब ये 100 मोर देन 100 हो जाता है तो हमें थोड़ा इसको पैथोलॉजिकली ओरिजिन के हिसाब से देखना चाहिए। तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ एलोपेशिया है, नॉन सिकाट्रिशियल एलोपेशिया एंड सिकाट्रिशियल एलोपेशिया। तो सिकाट्रिशियल एलोपेशिया और नॉन सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में क्या डिफरेंस है कि सिकाट्रिशियल में स्कैरिंग प्रेजेंट होती है, इसमें स्कैरिंग एब्सेंट होती है। स्कैरिंग प्रेजेंट और स्कैरिंग एब्सेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे वो एरिया बिल्कुल शाइनी रहेगा, एकदम चिकना हो जाएगा, हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉयड, आपको उस एरिया में हेयर फॉलिकल नहीं दिखेंगे, एकदम आपको चमकता हुआ एरिया दिखेगा। और यहाँ पे जो नॉन सिकाट्रिशियल है वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स अभी दिखेंगे आपको, और स्किन शाइनी और फॉलिकुलर ओपनिंग एब्सेंट होंगी, इसके अंदर फॉलिकुलर ओपनिंग विजिबल होंगी। यहाँ पे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस आता है। जहाँ तक मैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करूँ तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, एज ऑफ ऑनसेट ज़्यादातर पता नहीं होती, बट आफ्टर प्यूबर्टी ज़्यादातर देखा जाता है। may follow loss of hair from vertex. With increasing age, hair loss increases in most of the people. Most of the hair on the scalp are lost, except a rim of hair on side or back of scalp. So please also check testosterone and DHT levels in such cases. Over exercise or weight training must be controlled. Unnecessary use of protein should also be regulated, and lifestyle must be good and maintained from the initial phase of the treatment. Alopecia areata is also a common type of alopecia, जहाँ पे आपको पैचेज में मिलते हैं, कई बार देखते हो। Both males and females are affected and can start at any age. Etiology uncertain है, but immunological factors हैं, genetic basis है, emotional factors हैं. Generally presents with discoid patch of alopecia
which shows no scaling, papules, inflammation or atrophy. Presence of exclamation mark at the periphery of lesion is pathognomic. जैसे exclamation mark हम लोग देखते हैं ना, एक हेयर होता है, फिर एक लाइन होती है, बीच में डॉट डॉट होता है, इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है. इसमें आगे देखोगे तो आप साइन ऑफ प्रीडायलेक्शन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑन स्कैल्प, मुस्टैच एंड बियर्ड एरिया, समटाइम्स और आईलैशेस एंड आईब्रोज में आता है. सम पेशेंट लॉस हेयर इन अ बैंड लाइक पैटर्न, ठीक है, अदर लॉस हेयर इन फ्रॉम देयर स्कैल्प. अलग अलग तरीके से ये टाइप्स के होते हैं. तो वो एलोपेशिया किसी भी टाइप का हो, हमारा जो मेथड ऑफ अप्रोच है वो सेम ही है. सो होम्योपैथिक अप्रोच फॉर हेयर फॉलिंग, whenever patient presents with either alopecia or hair fall, always examine the scalp to rule out any atrophy or scarring of the scalp skin. Scarring of the scalp is seen as a shining surface, diminution or absence of hair core, loss of skin elasticity and wrinkling. It feels like thickened scar tissue when palpated. Atrophy is seen as wrinkling, thinning or loss of elasticity. It is important to remember that in cicatricial cases, hair never grows back, while in non-cicatricial cases they do, as we discussed in the table also. If the cause can be controlled and treated. Treatment consists of finding the cause and its elimination, reassurance and improvement of general health with good nourishing diet, vitamins, minerals. In debilitated individuals, alfalfa mother tincture can be given, जिनको भूख वगैरह नहीं लग रही है वहाँ पे, and quiet relaxing holidays very beneficial, मतलब उनको mental stress दूर करने के लिए भी आपको करना होगा. Local treatment, avoid repeated and too frequent combing and shampooing, avoid excessive use of oil and oily preparations, especially seborrheic individuals जिनके अंदर स्वेट ज़्यादा बनता है. लाइट मसाज, ये एक कहीं से एग्जांपल लिया है किसी बुक का कि भाई आप ये CPR आर्मी का जैबोरंडी मदर टिंचर को लो और इस तरीके से मिक्स करो, बट ये मैं एडवाइस जनरली करता नहीं हूँ. तो मैं इस पे ज़्यादा मेरी कमांड है नहीं है, मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको बता नहीं सकता. बस किसी बुक में ही लिखा कि आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, 3-4 टिंचर्स को मिला के उस तरीके से आपको करना है. बट आई बिलीव मोस्टली ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एज वेल एज मैनेजमेंट ओनली. वैसे तो आप मिरेकल्स ऑफ मदर टिंचर बुक है, आप उसको पढ़ के देखो, बहुत सारे हैं. बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार मदर टिंचर जो है पेशेंट को नुकसान कर जाता है, और हेयर में कई बार स्किन इरप्शंस, पेनफुल इरप्शंस, और बल्कि वो केस उल्टा कर देता है. तो मदर टिंचर प्रेस्क्राइब करने से पहले सोचना चाहिए कि आप, क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकता है. ना होम्योपैथिक मैनेजमेंट मैटेरिया मेडिका की जहाँ तक बात करें, हम सब ने पढ़ा है, बट एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. एसिड फ्लोर के केस में क्या होगा? लार्ज पैचेस entirely denuded of hair, the new hair that grows is dry and lusterless and breaks off easily. The patient must comb the hair often because it mats at the end. Itching of head with falling of the hair, यानी मैटिंग भी होती है, मिलते हैं, बाल उलझ जाते हैं ज़्यादा. Falling of the hair because of the syphilis also. And in aloe, the hairs come out in lumps, leaving bare patches. Eyelashes also fall out with frequent frontal headache. Ammonium mule, large accumulation of brain-like scales with falling of the hair, which has a dented and lusterless appearance with great itching of the scalp. Antim crude, losing hair from nervous headache. Touching the hair is painful in arsenic album. Bald patches at or near the forehead. The scalp is covered with dry scabs or scales, looking like rough and dirty. और हम मैट में सिफिलिटिक एलोपेशिया, हालांकि अब सिफिलिस तो जल्दी कोई फाइंड आउट करता नहीं है, बट ये पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है. Baratta का baldness, especially of the crown. In young people, the scalp is very sensitive to touch. Borax, hair is rough and horny, cannot be combed smooth. Calcarea carb, especially when combing, hair falls out. Dryness of hair, great sensitiveness of the scalp. Cantharis, hair falls out when combing, especially during confinement and lactation. किसी ने पूछा भी था कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान कौन सी दे सकते हैं, तो कैंथरिस भी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है. देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इनॉर्मस डैंड्रफ विद स्कैल्प. एंड कार्बोवेज भी जो है वो काफ़ी अच्छी, और खास करके जो आपके लॉन्ग लास्टिंग इलनेस चल रही होती है किसी को, तो उसमें अगर सिम्टम सिमिलरिटी है तो कार्बोवेज बहुत अच्छा एक्शन करती है. चाइना में स्वेट काफ़ी होता है हेयर में. ग्रेफाइटिस में बेयर्ड और आईब्रोज से भी हेयर फॉल होता है. लूजिंग ऑफ हेयर फ्रॉम आईब्रोज एंड पुडेंडा हेलिबोरस में भी है. तो ये सारे आपके कभी कभी देने पड़ते हैं मेरे को, मैं इसमें से देता हूँ, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ. इसमें अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वाला हेल्प मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है, फिर वो आपका केस और अच्छा. जैसे नेट्राम्यूर हेयर फॉल है और कॉन्स्टिट्यूशनली में नेट्राम्यूर जा रही है,
तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लाइकोपोडियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइकोपोडियम लग रहा है, तो हेयर फॉल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से दोनों मैच कर जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, प्लम्बम, सारसाप्रेला, सेलेनियम, सीपिया, साइलिशिया, स्फिंगरस। इस स्फिंगरस का यूज मैं काफ़ी करता हूँ। ये आपके फॉलिंग ऑफ हेयर स्पेशली फ्रॉम बियर्ड एंड विस्कर्स में काफ़ी काम आता है, काफ़ी अच्छी इसने इम्प्रूवमेंट दी है। स्टेफिस एग्रिया, विंका माइनर, वाइजेपडन, ये सारी मेडिसिन जो हैं जनरल प्रैक्टिस में यूज होती हैं। मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अमोनियम म्योर में हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड हेयर फॉल विद डैंड्रफ एंड ईचिंग, डिजायर टू क्राई। डैंड्रफ एंड ईचिंग है इसमें हेयर फॉल में, और डिजायर टू क्राई बट कैन नॉट, इट में भी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीफ, किसी ग्रीफ से सफर कर रहा है तो ये अमोनियम म्योर दी जाती है। काली कार्ब, टेंडेंसी टू ड्रॉप्सी, फैटी डिजनरेशन, फुल ऑफ फियर, इमेजिनेशन, डेस्पोंडेंट एंड ग्रेट डायनेस ऑफ हेयर, यानी ये कॉम्बो रहता है अगर मेरे पास, तो मैं इस तरीके की मेडिसिन देता हूँ। मेलेंड्रिनम, यानी आफ्टर वैक्सीनेशन में काफ़ी दिया जा रहा है, थूजा और साइलिशिया भी देते हैं, लेकिन मेलेंड्रिनम भी काम आती है। हेयर फॉल आफ्टर एक्यूट सिकनेस लाइक इन कोरोना वी ऑब्जर्व मेनी पेशेंट समटाइम्स क्रस्ट फॉर्मेशन ऑल्सो। यहाँ पे कोरोना याद आया तो एक अपना हेलियम मेट भी है, बहुत अच्छा काम करती है। सेलेनियम जो है अपनी मेडिसिन है। लेसीवियस थॉट्स विद इंपोर्टेंसी, बैड इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल एक्सेसेस, हेयर फॉल फ्रॉम बियर्ड, ब्रोज एंड जेनिटल्स। बेडियागा इन मोस्ट केसेस वेयर डैंड्रफ, स्कैल्प ड्राई एंड सोर। फॉलिकुलिनम स्पेशली वेयर पीसीओडी एग्जिस्ट विद द हेयर फॉल एंड पेशेंट प्रेफर्स फ्रेश हेयर। फॉलिकुलिनम पे आपको लिटरेचर पे मिल जाएगा, नेट पे, इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं। वाइजेपडन, हेयर ग्रोज मच मोर रैपिडली देन यूजुअल देन फॉल्स आउट, यानी बाल डॉक्टर साहब बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं बट तुरंत गिर जा रहे हैं। ये वाइजेपडन का आपका बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। डिस्कमिशन ऑफ स्कैल्प, क्लार्क ने लिखा हुआ है इसके बारे में, और स्फिंगरस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो इन नेचुरल कॉजेटिव बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन मेरा होता है, अगर डैंड्रफ है तो बेडियागा, पेट्रोलियम, ब्रायनिया, कैंथरेस भी दे देता हूँ। सेक्सुअल एक्सेसेस है तो सेलेनियम, कैंथरेस दे देता हूँ। इसके बाद मेंटल स्ट्रेस है तो पिक्रिक एसिड, और डिपेंड अपॉन द मेंटल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, मैं जो है उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देता हूँ। जीआई डिस्टर्बेंस में वही अधिकतर जो है, अगर मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो हेयर फॉल नक्सोमी का बहुत अच्छा एक्शन देती है, बहुत अच्छा काम करती है। आयरन मेटाबॉलिज्म की जहाँ बात की जाए, अब आयरन मेटाबॉलिज्म में जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपको कह रहा हूँ, अगर उसका टीआईबीसी, सीरम फेरेटिन और सीरम आयरन तीनों ठीक हैं, फिर भी लग रहा है कि आयरन में प्रॉब्लम है, आयरन में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो हम जो है इसको फेरामेट या वेनेडियम देते हैं। कहाँ टीआईबीसी में भी प्रॉब्लम है वहाँ भी आप फेरामेट दे सकते हो, जहाँ पे सीरम ट्रांसफेरिन में प्रॉब्लम है वहाँ वेनेडियम भी दे सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आयरन मेटाबॉलिज्म के केसेस में सूट करती हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम है, हम दोबारा वही सारे आपके मैनेजमेंट देखेंगे, प्लस आपकी जो टोटलिटी आ रही होगी पेशेंट की उसमें। बाल्डनेस इन पैचेस लाइक एसिड फ्लोर एंड फॉस्फोरस, बियर्ड एंड मुस्टेचेस अगर वो है तो हम स्पिंगर्स देखते हैं। अब रेपर्टरी की बात कर लें तो रेपर्टोरियल अप्रोच की बात होते हैं, तो जनरली आई यूज नर रेपर्टरी वेयर आई फाउंड मेनी rubrics relevant to the hair fall. Synthesis also helps you at many places like delusion of hair fall or where mind section is involved in the hair fall. In this hormonal cause, combing aggravates, all practical rubrics are given which may be used during the repertorization after the case. तो इधर आप देख रहे हो आपके सामने नर खुली हुई है, ये तो हेयर के आगे, बाल्डनेस के आगे मेडिसिन लिखी हुई है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि सिंगल मेडिसिन लिखी हुई हैं, तो यू कैन यूज इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो, लाइक हेयर बाल्डनेस स्पेशली ऑन क्राउन, बेरेटा कार्ब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रेड में लिखी हुई है। सर्कुलर पैचेस में लाइकोपोडियम लिखी हुई है ना। सर्कमस्क्राइब स्पॉट ऑन फ्रंट, हर्पीज विद हर्पीज, ग्रेफाइटिस, तो ये सारी प्री मैच्योर है, तो साइलेशिया है। यंग पीपल में है। ब्रिसलिंग हेयर की तो ये मेडिसिन है। ब्रिटल हेयर है तो ये है। कॉम्बिंग और ब्रशिंग पेनफुल हो रही है तो ये मेडिसिन है। ये बहुत सारे उसमें चीज़ें दी हुई हैं हेयर से रिलेटेड, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। डज नॉट बेयर कॉम्बिंग, कैन नॉट बी कॉम्ड स्मूथ, है ना। कॉजेज स्नीजिंग, देखो कितना कितना अलग अनोखा तरीके का ये, लेकिन कभी कभी पेशेंट मिल जाते हैं कि कॉम्बिंग करने से स्नीजिंग आती है, ठीक है ना। ये इस तरीके के आपको सारे ड्राई हेयर का और फॉलिंग आउट का सबका रूब्रिक दिया हुआ है। आफ्टर गोनोरिया, इन हैंडफुल्स, क्रॉनिक इरप्शंस के बाद, एक्जिमा के बाद,
क्रॉनिक हेडेक के बाद, हिस्टीरिया के बाद, मॉर्टिफिकेशन के बाद, ये सारे दिए हुए हैं आपके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, ये आपके सारे रूब्रिक्स काम आते हैं आपके। ग्रोइंग स्लो है, लस्टरलेस है हेयर, प्लिका पोलोनिका है, ये सारे केसेस में, रूट्स के बारे में, रूट्स पेनफुल हैं, कॉम्बिंग में पेनफुल होती है रूट्स में, वो सब आप अच्छे से उसको, थिन है, किस तरीके की उनकी टेक्सचर है, स्टिक टुगेदर, ये सारे आपके सामने कॉजेज दिए हुए हैं। तो आप आराम से फाइंड आउट करके, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे कुछ लोग होपलेस हो जाते हैं, तो वो इसके बेसिस पे भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन चीज़ों को भी लेकर के प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ये आपके लिए टिप्स है, क्लिनिकल टिप्स आप समझो, इसको आप हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेपर्टरी है। डैंड्रफ के केस में स्पेशली इसमें दिया हुआ है इतनी सारी मेडिसिन। उसके बाद कुछ इन्होंने थोड़ा सा अलग से भी करके दिया है कि भाई स्मेल आ रही है डैंड्रफ में, स्केली है, वाइट है, येलो है, कैसा है, उसके लिए डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है, तो ये भी आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं सिंथेसिस में, लाइक हेयर फॉलिंग आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर एक्यूट एग्जॉस्टिंग डिजीज, आफ्टर फीवर, आफ्टर इमोशंस, आप ये देख सकते हो, आफ्टर टाइफाइड, आफ्टर इनडाइजेशन, आफ्टर इंटॉक्सिकेशन, ये बहुत सारे रूब्रिक्स आपको सिंथेसिस में इटसेल्फ मिलते हैं। हेयर फॉलिंग फ्रॉम ग्रीफ, फ्रॉम हार्मोनल कॉजेज, उसमें वो भी हार्मोनल कॉजेज में भी गोनेड और वो सब लिखा हुआ है, ओवेरियन डिस्फंक्शन लिखा हुआ है, पर हम लोग कभी ध्यान नहीं जाता, हम लोग कभी सोचते नहीं कि लिखा भी होगा, कई बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते। व्हेन कॉम्बिंग रिप्लेस बाय ग्रे हेयर, जब हेयर फॉल हो रहा है वो फिर उसके बाद जो नया आ रहा है वो ग्रे आ रहा है या व्हाइट आ रहा है, ये भी लिखा हुआ है उसमें। तो रीजन वाइज भी लिखा हुआ है कि भाई आई लैशेस से अगर गिर रहे हैं, आईब्रो से गिर रहे हैं, एक्सट्रीमिटी से गिर रहे हैं, चेस्ट से गिर रहे हैं, फेस से गिर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट रीजन का भी इसमें लिखा हुआ है, तो वो आप उसको एज ए टोटलिटी में ले सकते हो। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग मेजर्स क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन हेयर लॉस ना, कैल्शियम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं ना इसको, विटामिन B5 को, तो वो भी कभी कभी हमें देना पड़ता है, 15 दिन 20 दिन देके आप 5 दिन का गैप कर दो B5 को, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा फीमेल्स के केस में विटामिन E सप्लीमेंट भी काफ़ी अच्छा असर करता है। आयरन डेफिशिएंसी तो आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ देखो कि आप विटामिन बहुत ज़्यादा लंबा मत चलाना, आप इस तरीके से कर सकते हो 15 to 20 days you will give, then you will take a 5-6 days और 10 days गैप, उस तरीके से आपको उसको करना होगा। ट्रिमिंग ऑफ हेयर्स जो है टाइम टू टाइम नेसेसरी होती है, कई लड़के जो है बाल लंबे कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें उसमें उसको करेक्ट करने के लिए कभी शेविंग भी करवानी पड़ जाती है, बहुत बुरी कंडीशन होती है, अनहेल्दी अनहाइजेनिक पूरे हेयर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबे बाल रखना भी जो है ना वो हेयर फॉल को बुलाने का नतीजा देना होता है। तो या तो आप उसको साफ रखिए, हेल्दी कंडीशन में रखिए, तब तो उसको बढ़ाइए, अदरवाइज टाइम टू टाइम आप 40-50 डेज का अंतराल में आपको हेयर ट्रिम कराते रहना चाहिए, स्पेशली मेल्स को। जनरली आई डोंट प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर शैम्पू कंडीशनर और हेयर ऑयल कि आप ये शैम्पू लगाओ वो लगाओ। जनरली देखो शैम्पू जैसे टूथपेस्ट का काम है दांत को साफ रखना, शैम्पू का काम ही है, कंडीशनर का काम है हेयर को क्लीन रखना, हेयर स्कैल्प को क्लीन रखना। तो इसमें कुछ लोगों को कुछ शैम्पू सूट करता है, कुछ लोगों को कुछ सूट करता है, बेसिक उसका काम उसको साफ रखना है। शैम्पू हेयर फॉल नहीं रोकेगा, हेयर फॉल आपको रोकेगा आपके खाने के स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल और आप किस तरीके से रह रहे हो, वो हेयर फॉल को रोकेगा, शैम्पू नहीं रोकता है। शैम्पू तो उस एरिया को क्लीन करेगा। हेयर ऑयल से मसाजिंग वगैरह करते हैं लोग, मैं जनरली मैं तो कहता हूँ कि स्वेट में इतना ऑयल होता है, तो जनरली मैं ऑयल अवॉइड करवाता हूँ, बट अगर जिन लोगों को आदत है मसाज करने की, हेयर मसाज से भी कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, बट उतना ज़्यादा इंडिकेटेड मिलता नहीं है, मेरे को इतना ज़्यादा रिजल्ट मिला नहीं। उल्टे आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जितने भी शैम्पू कंडीशनर या डाई में वो अवॉइड करने चाहिए, और एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सिट्रस एंड जूसी फ्रूट्स विद ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, एंड साथ ही साथ लाइफस्टाइल बहुत बड़ी चीज़ है, वो जरूर चेंज करने को आप बोलो पेशेंट को। एंड नाउ व्हाट आई हैड लिटिल नॉलेज आई केप्ट बिफोर यू, होप यू ऑल हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियरिंग, है ना। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वी विल टेक इट, और उसके बाद फिर देखते हैं। डॉक्टर साहब ये स्नेहा कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? यस सर, कुछ क्वेश्चंस थे सेशन से पहले जो गूगल फॉर्म कंडक्ट हुआ था,
Some of them, एक था कि there are many cases that are geared up when there is a reaction using the color dyes and hair products. Please give your precious suggestion for them. कलर डाइज और कलर डाइज के लिए क्या होता है कि जनरली कलर टू डाई करना चाहिए नहीं, लेकिन लोग करते हैं और करना भी पड़ता है सामाजिक हिसाब से। तो जनरली जो आपके अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं कलर डाई में, थोड़े से कॉस्टली आते हैं। तो मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा व्यक्तिगत तरीके से कि भाई ये कलर डाई लगाओ या वो लगाओ, बट अच्छी क्वालिटी वाले आप लगाएं। और अगर आप नेचुरल मेथड से करते हो तो वो भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कुछ लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो वो करना केमिकल की तुलना में नेचुरल मेथड्स ज़्यादा ऑप्ट करना सही रहता है। बट यू नेवर नो, एक बात ये ना कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। एक चीज़ किसी को नुकसान दे रही है, वही चीज़ किसी को फायदा दे रही है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है कि आपने डाई करना शुरू किया उसके बाद से हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसको बंद करके आप चेंज करो डाई। मतलब ये इंडिकेशन है कि भाई इसकी वजह से ही हुआ है। तो पेशेंट को ये पूछना होगा कि आपने जब से ये डाई वगैरह लगाना शुरू किया तब से हो रहा है क्या, तो वो पेशेंट आपको बता सकता है। तो देन स्टॉप दैट डाई, है ना। ओके, और एनी? Sir, next question was how to treat widow's peak. How to treat Widow's peak. widow's peak? मैं नहीं समझ पाया क्या है ये। widow's peak लिखा हुआ है। Yes कुछ sir. होगा, कोई टर्म होगा, मैं को नहीं पता इसके बारे में। या तो उसको जिसने पूछा है क्या नाम पता लग सकता है किन्होंने पूछा है? Sir, it is from Das Shilpi. Shilpi Das. Shilpi Das is there or not in this conference? सर नहीं सर, मैं लिपि दास बोल रही हूँ। अच्छा, बता। हाँ, लिपि दास, बताइए क्या पूछ रही हैं? सर, विडो स्पीक मतलब सर फॉरहेड का साइड में स्पेशली लड़का लोगों का ट्रायंगल जैसा हो जाता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस वही तो है ना जो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया है। यस सर। वही है ना, तो वो तो मैं बता चुका हूँ। तो ठीक है, वो आप उसको दूसरा नाम दे रहे हो, वो वही है चीज। एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के बारे में ही बात हो रही है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? Is mother tincture beneficial for external application for hair fall? I do not recommend. Personally, I do not recommend to apply mother tincture on the hair. Because आप ये देख रहे हो कि जो लाइफस्टाइल है वो आपने करेक्ट कर लिया, जो डेफिशिएंसी है वो आपने करेक्ट कर लिया, तो आपको बहुत फायदा मिल जाता है। टिंचर की बारी तो बाद में आती है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें ये है कि पेशेंट के अंदर पेशेंस नहीं है, डॉक्टर के अंदर तो है ही नहीं। डॉक्टर तो खुद चाहता है कि उसके पेशेंट को अगले दिन हेयर फॉल सही हो जाए, तो पहले तो डॉक्टर को पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सेकंड, ये कुछ वो हिल गया, कैमरा शायद हिल गया है। एक मिनट, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी? Yes sir. Yes sir. तो अभी क्या है कि आपको ये देखना होगा, ये ध्यान में रखना होगा कि आपको पेशेंट को पहले बताने से पहले आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि ये टाइम टेकिंग जॉब है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक्यूट केसेस में आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, क्रॉनिक में कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो आप घबरा जाते हो और पेशेंट भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो क्या करता है, 15 दिन आपसे दवाई लेता है, फिर 15 दिन बाद दूसरे डॉक्टर से लेता है, फिर 15 दिन बाद तीसरे डॉक्टर से लेता है। वो ऐसे ही करते रहता है, उसको कहीं फ़ायदा नहीं होता और विगरसली हेयर फॉल गिरना शुरू होता है। फिर वो विशियस साइकिल में पहुंच जाता है। एक तो स्ट्रेस दुगना हो जाता है कि हेयर फॉल नहीं रुक रहा, पैनिक कर जाता है, और फिर धीरे धीरे करके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को भी आपको समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आप इधर उधर जो जा रहे हो, आप पहले जिन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को देखो, अगर इसमें कमियां हैं तो उसको सुधारो। और आप ये सोचो कि आप अगर आयरन की कोई चीज़ खाते हो तो 1 महीने बाद आपका 1 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो बॉडी का जो प्रोसेस है वो स्लो है, एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का। ऐसा नहीं होता कि आज आपने खाया और कल सही हो गया। तो ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। हमारे भी पेशेंट छूट के चले जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि हमारे सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट इस कैटेगरी के हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो उस पर काम ही नहीं करना चाहते हैं। सुनेंगे, काम करेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। उसमें मोस्टली आपका 40-50% तो दोष नहीं है। पेशेंट जो आपके पास सही नहीं हो रहा है, वो एक तो आपकी बात नहीं सुन रहा है, प्लस वो थोड़ा उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो
टिंचर देने का मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं करता हूँ, क्योंकि एक आध बार देके देखा है, वो पेशेंट में इतना विगरस रिएक्शन हो गया, उसको इरप्शंस आ गए, कल को आपको नेग्लिजेंस ठोक देगा आपके ऊपर, आपको पता ही नहीं कि उसका क्या रिएक्शन होता है। एक किसी डॉक्टर ने बता दिया कि क्रोटॉन टिंचर लगा लो जमाल घोटे का, वो उसका पूरा दाना निकल आया, बोले तुम्हारे नए बाल निकल आएंगे जमाल घोटा लगाने से। वो आया मेरे पास, तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसा ये सब काम मत करो भाई, ये सब काम मत करो। तो इसलिए आई जनरली अवॉइड टू गिव एडवाइस टू अप्लाई टिंचर्स, है ना। Sir, rest you have covered session. Yeah. Yes. Okay. If anybody want to ask, किसी कोई हैंड रेज कर रहा है? हाँ डॉक्टर प्रीति प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था कोई फेवरेबल पोटेंसी है जो आप सजेस्ट करेंगे किससे हम ट्राई या शुरू करें ताकि पेशेंट को थोड़ा सा आराम आए, वो ट्रस्ट हमारा थोड़ा वो गेन हो जाए। थैंक यू। तो मैं ज़्यादातर यूज़ जो है 30 या 6 पोटेंसी करता हूँ यूज़ करने के लिए, और जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे को मेंटल जनरल्स ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं तो मैं 200 या 1M में जाता हूँ। अगर हेयर फॉल का केस है और मेंटल जनरल्स अच्छे मिल रहे हैं तो जनरली अगर मैं रेप्स पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ तो मैं 30 ज़्यादातर देता हूँ। टिंचर नहीं देता पीने के लिए हेयर फॉल में, मैं 30 पोटेंसी का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। फ्रिक्वेंटली कर लेता हूँ, जैसे मान लो QID कर लिया, TDS कर लिया, फॉर 15 डेज रेगुलर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 या 30 ज़्यादा यूज़ करता हूँ अगर मैं पर्टिकुलर दे रहा हूँ या थेरेप्स के हिसाब से दे रहा हूँ। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? यस अभिलाषा पूछो बेटा। सर मुझे ना ये पूछना था कि लाइक मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा, मतलब सर पे और फेस वगैरह एरिया पे कुछ ज़्यादा ही स्वेट है, तो इसकी वजह से मुझे ना सर पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, सिवियर टाइप की इचिंग होती है। और जब स्टार्टिंग में जैसे बाल धोया तो इतना पता नहीं चलता, बट जैसे 2-3 दिन बीत जाते हैं और लाइक कॉलेज वगैरह आना जाना होता है तो उसकी वजह से हम रेगुलरली वॉश नहीं कर पाते। लाइक एक बार धोया उसके बाद 3 दिन बाद फिर धोते हैं, ऐसे मतलब गैप देकर धोते हैं, तो इसकी वजह से चाहिए रोज तो आप फीमेल्स तो रोज वैसे भी हेयर वॉश नहीं करती ना, गैप देके ही करती हैं। क्या सर? फीमेल्स वैसे भी जनरली हेयर वॉश तो गैप देके करती हैं ना। हाँ सर, क्योंकि सर संभालना मुश्किल होता है। तो हाँ सर, उसकी वजह से लाइक जैसे सिवियर इचिंग होती है ना, तो लाइक नेल्स में ना बहुत ज्यादा डिपोजिशन टाइप का आ जाता है सर की वजह से, तो इसके लिए कुछ है लाइक घर पे कुछ कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो इसके लिए 2 बातें हैं, कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस है आपको, जैसे हाथों में ज़्यादा पसीना आना या सिर पे ज़्यादा पसीना आना हाइपर हाइड्रोसिस की निशानी है, तो उसको पहले रेक्टिफाई कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा आरिश है, उसको हाइपर हाइड्रोसिस है, तो वो आता है दिखाने मुझे, तो बीच में उसको फ़ायदा हो जाता है, फिर दवाई बीच में छूटती है, जो भी होता है फिर आ जाता है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, बट उसको पाइलोकार्पस से आराम था, तो बेसिकली आपको आना होगा, आपने दिखाना होगा। अभी तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल केस टेकिंग भी नहीं की है मैंने, बट मे बी अब देखते हैं, अगर इससे आराम नहीं मिलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस टेकिंग करनी पड़ेगी। बहरहाल ये पसीना आना, देखो पसीना आना कॉज नहीं है, पसीना आना अगर सिर पे पसीना आ रहा है तो वो आता है लोगों के, और ये नेचुरल चीज़ है। पानी वानी ज़्यादा पियो और हाइड्रेटेड रहो, है ना, क्योंकि पानी हम लोग कम पीते हैं इन जनरली। और जैसे विटामिन C सप्लीमेंट देखो, कितना तुम सिट्रस फ्रूट्स खाती हो, कितने तुम वेजिटेबल्स खाती हो, कितने तुम ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हो। खाते नहीं ना हम, हाँ करते हैं, दूसरों को भी उपदेश देते हैं, करते नहीं खुद। आप देखो अपनी लाइफ में सारे टेस्ट वगैरह ही करा के देखो जो बताए हैं, फिर देखो कहीं कहीं कोई कोई गड़बड़ निकलेगा, उसको सुधारा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। वो सही हो पाएगा। हो गया जी, 1 आवर हो गया सेशन। सब बोर हो गए प्रवचन सुन सुन के? नहीं सर, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, सो डॉक्टर निहारिका, आपकी क्वेरी कुछ सॉल्व हुई? ये स्वरा कुछ पूछना चाह रही है। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है रेडीमेड जो मार्केट में आती है, जिसमें काफी कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होता है, तो वो कितना हेल्पफुल होती है इन सारे मामलों?
कुछ में हो जाती है, कुछ में नहीं होती है। अब वही वाली बात है, जैसे मैंने कहा ना कि शैम्पू किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। जैसे आर्निका मोंटाना या आर्निका मोंटाना से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं शैम्पू और हेयर ऑयल। बहुत सारे लोगों को सूट करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जैसे मैं कहता हूँ कि आप शैम्पू अगर इस्तेमाल करते हो अगर केमिकल वाला, उससे बेटर है कि आर्निका मोंटाना करके देख लो, क्योंकि कम से कम केमिकल तो नहीं है ना उसके अंदर। तो केमिकल चीज़ों को यूज़ करने से अच्छा है कि आप यूज़ करके दें। बट मेरा इसमें ये नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि फलाना शैम्पू ले लो बेटा या फलाना ऑयल ले लो और ये पेशेंट को दोगे तो बिल्कुल गारंटेड फ़ायदा हो जाएगा, वो नहीं है हिसाब किताब। ये वेरी करता है। तो मार्केट में तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली होती हैं, तब पता नहीं गॉड नोज़ क्या एक्शन होता होगा, लेकिन अब चल रही हैं, लोग ले रहे हैं। कुछ को फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है सबकी क्वेरी पूरी हो गई। किसी की रह रही है? किसी और का आया? डॉक्टर ज्योति। आज डॉक्टर ज्योति दिखी नहीं भाई, कैमरा ऑन नहीं कर पाई आज आप, बताइए। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया जब कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, मेरे को ये पूछना है कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हम किस एस्पेक्ट तक रिवर्ट कर सकते हैं, लाइक अलोंग विद हेयर फॉल एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इन कॉम्बिनेशन। देखो, लोग दावा तो करते हैं कि वो काले से सफ़ेद कर दिया हमने, बट मैंने तो अभी तक बहुत कम केसेस में काले से सफ़ेद होते तो नहीं देखा मैंने अपनी प्रैक्टिस में तो। बट ये है कि ग्रेइंग जैसे ग्रेइंग थी और स्पीड में ग्रेइंग हो रही थी, वो ग्रेइंग होने रुक गई। क्योंकि ग्रेइंग क्या है, ग्रेइंग क्या डेड हो रहा है ना, वो हेयर डेड हो रहा है, तो डेड से फिर लाइव कैसे हो जाएगा? होता होगा कुछ लोग, कुछ प्रोसेस होता होगा उसका, लोग कर लेते होंगे, बट मैंने तो आज तक मैं नहीं कर पाया कि ग्रेइंग का मैंने कोई ग्रेइंग हुआ और मेरा ब्लैक हो गया हो मेडिसिन देने से, ऐसा तो नहीं हुआ। बट जो स्पीड थी ग्रेइंग की या फॉलिंग ऑफ हेयर की, वो कम हो गई। मतलब इनिशियल स्टेज में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जाएं तो वी कैन स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल, इनिशियल स्टेज पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल जाएंगे तो जरूर बेनिफिट देगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि 90% हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दे पाते। प्रॉब्लम हमारी ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल निकाले क्या, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल निकालना ही अपने में बड़ी टेढ़ी खीर है। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल दे दो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन निकालना है। 8000 मेडिसिन में से एक से हाँ बोलिए सर। जैसे फॉर हेयर फॉल, फॉर हमें क्या फर्स्ट विजिट में कॉन्स्टिट्यूशनल जाना चाहिए या फिर क्विक प्रिस्क्रिप्शन पे जाना चाहिए? आपको हर केस में पहले कॉन्स्टिट्यूशनली जाना चाहिए। जो अप्रोच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें नहीं निकाल पा रहे हो आप या मुश्किल हो रहा है, देन यू गो फॉर द थेरेप्स। जो मैंने आपको थेरेप्स दिए इंडिकेशंस, और जो मैंने आपको नर रेपर्टरी बताई या कुछ आपको पॉइंट्स बताए कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैनर में दिया हुआ है, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। बट कॉन्स्टिट्यूशनल तो टॉप पे है, वो तो सबसे पहले है। अगर वो आप निकालना जानते हो, करना जानते हो, तो वो सबसे अच्छा है। आप किसी भी केस में उसी से शुरू करो, ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सर। एक कोई डॉक्टर चेतन है, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव रहती है? प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए लाइकोपोडियम ठीक काम कर जाती है, और वैसे ग्रेइंग के केस में मैंने जो देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है अगर आपने पकड़ लिया तो। ठीक है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के कॉजेज भी आपको मैंने बताए कि अगर आप वो रेक्टिफाई कर लो, अगर वो ऐसे एरिया में रह रहा हो जहाँ फ्लोरोसिस ज़्यादा हो, या ऐसे एरिया में जहाँ आप उसका पानी चेंज करा के देख सकते हो। मतलब मैनेजमेंट का आपको पहले देखना पड़ेगा, क्या उसकी जेनेटिक हिस्ट्री में भी ग्रेइंग थी, वो देखना पड़ेगा। जेनेटिक में है तो फिर आपको मियाज़मेटिक सोचना पड़ेगा। फिर वो एंटी मियाज़मेटिक जो भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कैसे हम सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक मियाज़मेटिक डिजीज है
तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो सारा प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो जा करके उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। बट मैं ये कह दूं कि भाई ग्रेइंग जो है वो होनी आगे रुक जाएगी, पर ग्रे हेयर्स जो है वो ब्लैक हो जाएंगे, तो वो मैं तो नहीं कर पाता हूँ भाई। हाँ, उसमें रिजल्ट मेरे को मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देखे कि फर्दर जो है ग्रेइंग नहीं हो रही। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है फिर, so now we are summarizing this session, है ना? Please give your feedback on the group also regarding this. और कुछ और क्वेरी भी होगी तो you can mail me also, you can ask me in the inbox also. अगर आपको कुछ बाद में भी समझ में आता है कि कुछ पूछना है, so we will do next webinar in next month on the other topic. You can suggest also कि कौन सा टॉपिक चुनना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.